Hello friends, you are most welcome to my channel. I'm doing good and I also expect you all are doing fantastic. So this video is specifically about splicer because many people ask that what is in a splicer, what do they are going to get when they order the splicer. So I think that I should make a comprehensive detailed video for this so that everyone who have any query regarding the splicer, even a single query can be solved by going through this video. So I made it available for everyone so that the queries can be resolved on a larger scale. What is splicer? Let's be real. Listen, open book exam can be tricky and having all the materials in front of you is good, but without the right strategy it's just like you are fighting a war without weapons, which is completely wastage of time and money. Okay, you have a tons of material to go through. You have RTPs, you have past paper, you have MTPs, you have model test papers, not in IBS but of other subjects, and you have 7 other subjects including set A set B for IBS purpose, and all these will form part and parcel of CA final IBS, including the another one that I forget to mention over here, the ICI जर्नल की केस स्टडी. ICI जर्नल में भी केस स्टडीज दी हुई हैं, वो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं. So in CA final paper number 6 you are going to study all these for this one single paper, and you are expected to know how to quickly find and apply the right information to get the required answer in exams. If you are missing this, then your exams won't be that much good as you expect. So that's exactly why I have created this splicer. I have created this to make your preparation smarter, easier, and becomes more effective. You can be more effective while you are going to get in the examination. Any question you are going to get, you can solve it at random. So this book isn't just a guide, it can be your game changer if you use it properly. I could give it in writing. Okay, so I carefully organize each and everything in this splicer so that you can find exactly what you need, exactly when you need it. You must get the answer quickly. Now what are the value addition that I have inputted in this splicer? What are the things that you will get not in any other book but in this splicer for IBS purpose? So सबसे पहली जो चीज़ मैंने इसमें इनपुट की है, दैट इज़ आई हैव डिज़ाइन इट टू सेव योर टाइम. क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती आपके लिए आपका समय होता है एग्जाम में. अगर इस बुक को यूज़ करके आपके 2 मिनट भी बच रहे हैं ना, दैट इज़ वर्थ फॉर यू, क्योंकि वो 2 मिनट आपको 4 मार्क्स दिला सकते हैं. और इसी पर्पज़ से मैंने ये स्प्लाइसर डिज़ाइन किया है. I have completely designed it for the purpose of saving your time. Listen, IBS is not about memorizing things, but you must know how to access and use the right information quickly. And for that, I have included comprehensive alphabetic index of ICI material for FR, AFM and audit. Listen, have a look over here. This is FR. FR में मैंने पूरा हेडिंग वाइज इसका कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स प्रिपेयर किया है. Just like first is introduction of Indian accounting standard. What is the heading number? It is heading number 1. What is the page number? It is page number 1.2. तो ऐसे करके इफ़ यू आर गोइंग टू गेट, उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली अगर मिल जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. आपने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये एक जर्नल क्वेश्चन है, ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 1 में, इंट्रोडक्शन में. तो आप गए वहाँ पर, आपने देखा आई फॉर इंट्रोडक्शन, उसके अंदर आपको सब पॉइंट में ये आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा चैप्टर, यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गया. ठीक है, और आपका टाइम कैसे बचा? आपका टाइम बचा बिकॉज इट इज़ ऑन पेज नंबर 1.7. यू क्विकली मूव टू पेज नंबर 1.7 एंड यू गेट द आंसर एंड जस्ट कॉपीड इन योर आंसर बुक. और ये जितने भी 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपको एग्जैक्टली कंप्लीट मार्क्स मिलने वाले हैं इसमें. So it is all alphabetically arranged. It is arranged just like I, R, S, F. ये 4 मैंने ब्रॉड पॉइंट ढूंढे जिसमें I फॉर इंट्रोडक्शन, R फॉर रोड मैप. अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल रोड मैप, यहाँ पर आपको एग्जाम में रोड मैप का कोई क्वेश्चन मिला. सपोज यू आर गेटिंग एन MCQ ऑन रोड मैप. उसमें आपका MCQ है कि क्या एप्लीकेबिलिटी आपकी अनलिस्टेड कंपनीज पर आती है, तो आप फ़ौरन जाएंगे यहाँ पर लिस्टेड कंपनी, India's roadmap for NBFC,
फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फॉर म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर कहीं भी अनलिस्टेड कंपनी नहीं है, ठीक है। तो आपका फॉरन से एमसीक्यू बिना बुक खोले ही यहाँ से सॉल्व हो जा रहा है। सो फॉर दिस पर्पस आई हैव इंक्लूडेड द सब हेडिंग्स एज अ सब पार्ट ऑफ द ये प्रॉपर हेडिंग, ठीक है। द ब्रॉड पॉइंट की जितने भी सब हेडिंग्स थे वो मैंने ऐसे करके यहाँ पर इंक्लूड किया। एंड नॉट ओनली दिस, आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड द पेज नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव सब हेडिंग्स टू। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एग्जाम के स्ट्रेस में होता क्या है कि सपोज यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन ऑन लिस्टेड एंटिटीज़। तो लिस्टेड एंटिटी का कोई क्वेश्चन आया एंड आपने क्या किया, आपने लिस्टेड एंटिटी देखा 1.29 पर जाकर 1.29 पर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। 2 4 5 मिनट इसमें ही ख़राब हो गए। आपके पास प्रॉपर इंडेक्स है, सब कुछ है, बट इसमें आपके टाइम ख़राब होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक डार्क शेड रखा है एंड एक लाइट शेड रखा है। मीन्स अगर आपको लिस्टेड एंटिटी देखना है तो आप फ़ौरन 1.20 पर जाओ। आपके जो एग्ज़ाम प्रेशर में जो एरर होती हैं 1.29 पर, तो ये एरर ना हो, क्योंकि 1.29 पर जब वो चीज़ है ही नहीं, आपको मिले कहाँ से, आपको तो 1.20 पर ही मिलने वाली है। सो ऑल दिस टेकिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स आई हैव क्रिएटेड अ डार्क एंड ए लाइट शेड। आपको जो स्प्लाइसर मिलेगा वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में मिलेगा, तो आपको ऑरेंज एंड वाइट नहीं मिलेगा, आपको ग्रेइश एंड वाइट मिलेगा। ओके, सो ये 2 शेड आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा और गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ, दिस इज़ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पूरे सारे चैप्टर का ऐसे ही कंपाइलेशन बनाया है मैंने। ऑल इंडेस, इंडेस 21, इंडेस 33, सारा कुछ इसमें मैंने ऐसे ही प्रोवाइड कराया आपको। देन दूसरी चीज़, द सेम गोज़ फॉर एएफएम। एएफएम में भी मैंने ऐसे ही आपको पूरा सब कुछ प्रोवाइड कराया। जस्ट लाइक यू हैव चैप्टर नंबर 1, उसमें आपको कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी चाहिए तो सी पर गए, सी पर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, हेडिंग नंबर क्या है 3.1, पेज नंबर क्या है 1.5। ऐसे करके ये आपको एफएम में भी पूरा अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स मैंने प्रोवाइड कराया है। टेस्ट योर नॉलेज कहाँ पर है, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस वो भी मैंने ऐसे करके यहाँ पर इंक्लूड करा दिए। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटायर स्प्लाइसर इन आईबीएस प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 एंड ऐसे करके पूरा एएफएम भी यहाँ पर कंप्लीट कराया है मैंने। देन बात आती है ऑडिट की। तो ऑडिट के लिए भी मैंने पूरा अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स प्रोवाइड किया है। जस्ट लाइक ए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट, उसका हेडिंग नंबर क्या है, उसका पेज नंबर क्या है, ऑल दिस विल कवर्ड ओवर हेयर। ओके, you are seeing the level of effort that I have inputted for making this splicer ready to use for you. Okay, then yeah, one more thing, just like this is related services के केस में आई फाउंड दैट आपके लिए अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, बट द क्रोनोलॉजिकल द फ्लो ICI मेड फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, उसमें आपके लिए वो फ्लो ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, उससे आपको जल्दी आंसर्स मिल जाएंगे। तो आई मेड इट इन दिस, मैंने इसको अल्फ़ाबेटिक नहीं रखा एंड मैंने इसको ICI के फ्लो में ही इसको प्रिपेयर किया है। सो हेयर इफ़ यू वांट दैट SRS, तो SRS के जितने भी पॉइंट थे वो यहाँ पर कवर हैं। हेडिंग नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, SRS 4400, SRS 4410 कंपाइलेशन एंगेजमेंट, सारे पॉइंट्स यहाँ कवर हैं, सबके पेज नंबर, कंपैरिजन, उसका हेडिंग नंबर, उसके पेज नंबर एंड उसके जितने भी की डिफरेंसेस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सारा कुछ कवर है। केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल सिनेरियोज इसमें है, सारा कुछ यहाँ पर कवर है। जितना भी हमारा मॉड्यूल में लिखा है सारा कुछ, ईच इन एवरी पॉइंट इज कवर्ड इन दिस स्प्लाइसर। सो अगेन आई हैव डन दिस फॉर रिव्यू टू एंड अनदर फॉर आई हैव डन फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस। इसको मैंने अल्फ़ाबेटिक नहीं रखा क्योंकि अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होने से आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बुरी तरह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एक एक चैप्टर में 3 4 स्टैंडर्ड्स हैं, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ICI के फ्लो में ही इसको प्रिपेयर किया। देन उसके बाद डिजिटल ऑडिट। अगेन डिजिटल ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉपर आप किसी फ्लो में कंफ्यूज हो जाओ या अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से कंफ्यूज हो जाओ, बल्कि इसमें अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स से आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकली फिर से अरेंज किया। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई हैव इंक्लूडेड इन एवरीवेयर एंड ये पूरा हमारा ऑडिट का सारा कुछ हो गया। देन फॉर सेट ए एंड सेट बी, सेट ए एंड सेट बी के लिए मुझे मॉड्यूल का इंडेक्स ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज सेट ए में होता क्या है, सेक्शन वाइज सारी चीज़ें लिखी होती हैं हमारे मॉड्यूल में। जैसे सेक्शन नंबर
147 से लेकर सेक्शन नंबर कितना है हमारे यहाँ पर, यस पूरा पनिशमेंट तक के, पूरा 205 206 तक के ये हमारे यहाँ पर सारे सेक्शंस हैं सेट ए में, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करती तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का एग्जैक्टली सेम पेज नंबर वाला इंडेक्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। सेम गोज़ फॉर सेट बी टू। सेट बी का अगर आपको और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव इंडेक्स चाहिए तो मैंने वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाला है, यू कैन गेट प्रिंट आउट ऑफ दैट टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट बी के लिए भी आपका अवेलेबल है, ओके। देन सेट बी हो गया, सेट ए सेट बी हो गया, हमारा एफ आर एफ एम एंड ऑडिट हो गया। डी टी आई डी टी के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से अपना इंडेक्स वगैरह लेकर जाएंगे और उनका ही गाइडेंस आप यूज़ करेंगे जो भी आपको वो डी टी आई डी टी में देते हैं, क्योंकि डी टी आई डी टी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो बहुत वास्ट है, उसके लिए आपको ऐसे ही मटीरियल पर नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर उसमें जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको आई बी एस को कंपाइल करना। देन उसके बाद जो चीज़ें हमारी जनवरी फरवरी की जर्नल में दी थी, ICAI ने जितना कुछ भी हमारी जनवरी फरवरी की जर्नल में इंक्लूड किया था वो सारी केस स्टडीज़ अप्रॉक्सीमेटली 35 पेजेस की हैंगी। तो मैंने वो पूरा 35 पेजेस की सारी केस स्टडी यहाँ पर इंक्लूड की है। एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन IBS बैच 2। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया। जान की जितने भी केस स्टडी ICAI जर्नल की थी, फेब की जितनी भी केस स्टडीज़ थी, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये भी आपको स्प्लाइसर के अंदर ही मिलेगा। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है अब उस पर चलते हैं, ओके। आई हैव इंक्लूडेड practical tips, real world examples and key strategies to help you not only understand the material but apply the concept seamlessly during the exams। अब कैसे हो है ये सब चीज़ें हैं आपके ICAI की केस सिनेरियोज और केस स्टडी का इन डेप्थ एनालिसिस। ये इसका स्टार पार्ट है। ये क्या है, ये इस पूरे स्प्लाइसर का स्टार पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या है देखिए, जैसे आपकी केस स्टडी है तो उसमें सपोज यू गेट इन ए केस स्टडी यू आर गोइंग टू गेट द 5 MCQs एंड 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, ओके। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर MCQ नंबर 1 है तो उसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये नहीं कि कंप्लीट क्वेश्चन मैंने उठाकर लिख दिया, और नहीं, सिर्फ जो उसका क्रक्स है क्वेश्चन का वो मैंने क्वेश्चन पार्ट में लिखा है। देन अप्लाइड कॉन्सेप्ट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। देन की सेक्शन, उस आंसर में की सेक्शंस क्या हैं, क्या क्या रेफरेंसेस आपको इन शॉर्ट अपने दिमाग में रखने चाहिए। और हाँ देखो, मैं बार बार कह रही हूँ, इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ स्प्लाइसर के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यू नीड नॉट टू लर्न इवन ए सिंगल थिंग। मैं बिल्कुल गारंटी से कह रही हूँ, अगर आपने इसको प्रॉपरली पढ़ लिया ना, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। देन यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, अप्लाइड कॉन्सेप्ट हो गया, की सेक्शन और किसका किसका रेफरेंस आपको इस आंसर को फ्रेम करने में लिखना चाहिए। एग्ज़ाम की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रैटेजी इस MCQ को सॉल्व करने की क्या होनी चाहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में इतना कुछ अगर रिकॉल ना भी हो तो एटलीस्ट वी कुड डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स सो दैट हमारा दिमाग ओपन हो जाए और हम एग्ज़ाम में उसको कोई भी तरह की कैसी भी केस स्टडी आती है हम उसको ईजिली टैकल कर पाएँ। देन व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक यू शुड अवॉइड, ठीक है। देखो ये तक कि मैंने इस स्प्लाइसर में लिखा है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक आप कर सकते हैं और आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप क्या मिस्टेक कर जाएंगे, क्या चीज़ आपके माइंड से मिस हो सकती है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। रियल वर्ड कंपैरिजन, ये जो केस स्टडी नंबर 1 का MCQ नंबर 1 है ये उबर के ऊपर है, ठीक है। उबर को ध्यान में रखकर इंस्टीट्यूट ने ये MCQ फॉर्म किया है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है। लाइकवाइज सेकेंड जो MCQ है वो अमेज़ॉन के ऊपर है, थर्ड MCQ अगेन उबर के ऊपर है, तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी। ओला उबर के ऊपर है फोर्थ MCQ, फिफ्थ जोमेटो के पेमेंट बोर्ड एक्सपेंशन के ऊपर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में कि रियल वर्ड से, और ये नहीं ना कि आपको ये सारा कुछ याद रखना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से, क्योंकि अगर आपने ये कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये पर्टिकुलर केस स्टडी कैसी है, और कोई आसमान से उतर के केस स्टडी तो आने वाली नहीं है, लाइकवाइज यही सब घूम फिर के आएंगी। तो अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग पूरी प्रॉपर रहेगी, तो आप कोई भी केस स्टडी ईजिली सॉल्व कर सकते हो,
ओके। तो ये सारा कुछ, एंड ये सब कुछ था एमसीक्यू के लिए। सेम गोज फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एनालिसिस। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का भी सेम है। बिजनेस मॉडल कैनवस, ओके। तो इसमें ऑस्टर मॉडल, बिजनेस मॉडल कैनवस, ये सारा कुछ अगर आपको ऑस्टर मॉडल, बिजनेस मॉडल, इसकी कोई भी प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो वो सारा कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड उसके बाद ओला उबर का बिजनेस मॉडल को लेकर ये केस स्टडी फ्रेम की गई है, पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा इन डेप्थ एनालिसिस हो गया हर केस स्टडी के लिए। केस स्टडी नंबर 1, लाइकवाइज फॉर केस स्टडी नंबर 2 एसजी फैशन का है, लाइकवाइज केस स्टडी नंबर 3, ऐसे करके पूरी 50 केस स्टडी का ये अवेलेबल है। एंड उसके बाद जो हमारे इंस्टीट्यूट ने एडिशनल 10 केस स्टडीज़ और प्रोवाइड की थी, वो उसके लिए भी मैंने इसको सेम ही बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ वेयर इट इज़। इट इज़ यस हेयर एडिशनल केस स्टडीज़। यहाँ पर केस स्टडी नंबर 1 पूरा सब कुछ इन ऑन द सेम लाइन मैंने बनाया हुआ एमसीक्यू के लिए, देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए, एंड उसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे स्प्लाइसर का स्टार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब स्टार पार्ट है जिसमें आपको सारा कुछ इन डेप्थ एनालिसिस मिल रहा है। उसके बाद मैं बोलूँ हमारा लड्डू कैसे पीछे रह सकता है ना। लड्डू इस पूरे स्प्लाइसर का लड्डू भी है। और तो वो लड्डू पे जाने से पहले आपको मैं ये दिखा दूँ दैट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ आरटीपी एमटीपी, जितना भी आरटीपी एमटीपी है मैंने वो भी यहाँ पर कवर किया है। सारे आरटीपीज एमटीपीज का सेम लाइन पर सारा कुछ एनालिसिस इंक्लूडेड है इसमें। एंड उसके बाद आरटीपी एमटीपीज हो गए। Yes, I always say the journey of 1,000 miles begins with only one step, and you must dare to take that one step only. Okay, so where is the laddu concept? Where it is? Let me check. Yes, it is here. The concept that repeated time and again in case study digest. देखिए मैंने क्या किया है, मैंने जितना भी केस स्टडी यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है और जितना एडिशनल केस स्टडी प्रोवाइड किया है उसमें क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इंस्टीट्यूट ने रिपीटेडली यहाँ पर इनपुट किए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि जो जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं वो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट किन किन क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं। तो सपोज़ क्वेश्चन नंबर 1 आपका सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है वो एआई एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये किस केस स्टडी में रिपीट हुआ है? हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजीज केस स्टडी नंबर 3 ऑफ द केस स्टडी दैट प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट ऑन व्हेन इन आई थिंक इट्स ऑफ May 24 अप्रॉक्स। तो उसके आसपास ही इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया था। तो ये हो गया आपका केस स्टडी नंबर 13 IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन डाइजेस्ट जो है उसमें 33, 34, 36, 35, 40, 41 उसमें ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए, ठीक है। एडिशनल केस स्टडी जो इंस्टीट्यूट ने अभी जैन फेब के आसपास प्रोवाइड की है उसमें क्या क्या है, उसमें केस स्टडी नंबर 2, 3, 4, 8, 7, 10 इन सब में ये सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोल रही हूँ कि देखिए एग्ज़ाम में अगर कोई आता है तो एग्ज़ाम में भी सेम ही आएगा। एग्ज़ाम में कहीं आसमान से उतर के कोई केस स्टडी नहीं आने वाली है, इसी तरह से रिपीट होकर आएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ मैनेज करना। जो IBS आपके लिए डर क्रिएट कर रहा है वो आपके लिए एग्जाम्शन भी ला सकता है, ठीक है। तो बस ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने उसके लिए ये आपको लड्डू दे दिया है, ठीक है। अब लड्डू क्या होता है ये हमारे स्टूडेंट्स को पता है, और अगर किसी को नहीं पता है तो वो आगे पता चल जाएगा। ओके, सो ऑल दीज आर कवर्ड ओवर हेयर। ये आपका डबल स्टार मान लीजिए या लड्डू मान लीजिए। And I always say that it's not being about the best, it's about being better than you were yesterday. So this is all what is included in the Splicer. So get your copy as soon as, because I want you to feel confident when you walk into the exam room. You don't have to go in unprepared or uncertain manner. With the Splicer you will have everything you need to succeed right at your fingertips. So don't wait, make the smartest choice for your exam preparation and turn your preparation into results. You have worked hard and now it's time to show what you can do. For
getting this splicer, fill the Google form in the comment section, pinned in the comment section below, and this splicer is available only for rupees 399. Okay, this splicer is available only for rupees 399. So grab your copy soon. Let's meet in the practice session. Until, take care and bye bye.